સુનિલ નાયક અને એમની આખી ટીમને અમેરિકામાં વસતા સૌ ગુજરાત પ્રેમીઓને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું કે આપના અથાગ પ્રયાસને કારણે અને નિરંતર પ્રયાસને કારણે, કારણ કન્સિસ્ટન્સી એ બહુ મોટી બાબત છે. નહીં તો ઘણીવાર ઉત્સાહમાં એકાદ કાર્યક્રમ થઈ જાય અને પછી વાત પડી ભાંગતી હોય છે. એના બદલે આયનાએ લગાતાર આ પરંપરા જાળવી રાખીને ઉત્તરોત્તર વૈવિધ્યસભર, ગુણવત્તાસભર અને વધુમાં વધુ લોકોની ભાગીદારી વાળું આખું જે આયોજન વિસ્તાર્યું છે એ બદલ આ ટીમના સૌ મિત્રો અભિનંદનના અધિકારી છે. અહીંના કાર્યક્રમમાં જવું એ ઘણું કરીને આજકાલ ગુજરાતમાં ગૌરવરૂપ બન્યું છે. સૌને એમ લાગતું હોય છે કે મને નિમંત્રણ આવ્યું છે, મારે આઈનાના કાર્યક્રમમાં જવું છે, ચલો ગુજરાતમાં મારે પણ ભાગીદાર થવું છે. હું માનું છું કે વિશ્વની અંદર આજે જે ગુજરાતની શાખ બની છે, ગુજરાતની જે આબરૂ ઊભી થઈ છે, એ ગુજરાતને જાણવા માટે દુનિયાભરના લોકો જિજ્ઞાસુ છે. ઇવન આપણી નવી પેઢી જેને ગુજરાત સાથેનો ઘરોબો જરા ઘટ્યો હશે, એને પણ આવા પ્રસંગોને કારણે ગુજરાતમય થવાનું, ગુજરાતને જાણવાનું, ગુજરાતની ગઈકાલને જાણવાનું, ગુજરાતની આવતીકાલને જાણવાનું એક મોટો અવસર મળતો હોય છે. અને એના કારણે આપણી ભાવિ પેઢીના જે ગુજરાતી સંતાનો છે અને ગુજરાતને પ્રેમ કરનારા વિશ્વમાં વસતા મારા સૌ ભારતીય ભાઈઓ બહેનો છે, એ આવા પ્રસંગોને કારણે ખૂબ ગૌરવપૂર્ણ રીતે ગુજરાતની વાત દુનિયામાં કરી શકતા હોય છે, આત્મવિશ્વાસ સાથે કરી શકતા હોય છે. અને એ અર્થમાં આ પ્રકારના મેળાવડાનું ઘણું જ મહત્વ છે. અને એવી ઉત્તમ કામગીરી અમેરિકામાં વસતી આખી પેઢી કરી રહી છે. એ બધા અભિનંદનના અધિકારી છે. મારે મારા સુનિલભાઈની એક ક્ષમા જરૂર માંગવાની છે, કારણ એ જ્યારે અહીં આવ્યા ત્યારે એમનો આગ્રહ હતો કે મારા મંત્રીમંડળના કોઈ સાથીને હું આ કાર્યક્રમમાં મોકલી આપું. બાકી તો જેટલું થાય એટલું કરતા જ હોઈએ છીએ, પરંતુ કોઈને અમે ન મોકલી શક્યા એનું કારણ એ હતું કે હમણાં અમારો ગુજરાતને ગામડે ગામડે વણથંભી વિકાસ યાત્રાનો એક મોટો કાર્યક્રમ ચાલે છે. ગુજરાતના લગભગ 4,500 ગામોમાં વિકાસના કોઈ ને કોઈ નવા કામો શરૂ કરવા અથવા જે કામો પૂરા થયા છે એનું લોકાર્પણ કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. લગભગ 14,000 કરોડ રૂપિયાના કામો એક સાથે ગુજરાતની અંદર કરવા માટેનું આટલું મોટું આયોજન શાયદ હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ પણ સરકાર માટે સંભવ નહીં બન્યું હોય, એવડું મોટું અમે કામ ઉપાડ્યું છે. અને બંનેનો સમયગાળો એક જ હોવાના કારણે એમને મારાથી મોકલી શકાય નથી. આપ સૌ ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો ત્યાં બેઠા છો ત્યારે આપ ઈશ્વરને જરૂર પ્રાર્થના કરો આ વખતે, અને પ્રાર્થના આ કરો કે આ વખતે થોડો વરસાદ ખેંચાયો છે, વરસાદ થોડો ઓછો પણ પડ્યો છે. એના કારણે સ્વાભાવિક છે પશુને તકલીફ થાય, ખેડૂતને તકલીફ થાય, સામાન્ય માનવીને તકલીફ થાય. એ તકલીફના દિવસો, અને હવે જ્યારે ગુજરાતમાં 10 વર્ષમાં ક્યારે કોઈ તકલીફ ન પડી અને એવી વખતે વરસાદ અટકે તો જરા તકલીફ વધારે થાય. કાયમ એસીમાં રહેતા હોઈએ અને એક દિવસ લાઇટ જતી રહે તો કેવી તકલીફ થાય, એવી તકલીફ આ વરસાદ ઘટવાને કારણે મારું ગુજરાત અનુભવી રહ્યું છે. આવો આપણે બધા ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે વરસાદની મહેર થાય. અમેરિકામાં બેઠેલા આપ સૌ પણ ગુજરાતની લાગણીને ભાગરૂપે જરૂર ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરજો કે જેથી કરીને મારા ગુજરાતનો ખેડૂત, મારા ગુજરાતનું અબોલ પશુ, એને ઈશ્વરના કારણે, વરસાદના અભાવને કારણે કોઈ કષ્ટ ન પડે એની ચિંતા આપ જરૂર કરજો. હું હમણાં, કારણ કે મને સુનિલભાઈએ કહ્યું હતું 5 વાગે તમે હાજર થઈ જજો, તો હું 5 વાગ્યાથી આપનો કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યો હતો TV 9ની મદદથી, અને ઘણા બધા જૂના ચહેરા મને જોવા મળ્યા. ભાઈ પરિમલ નથવાણીનું ભાષણ સાંભળ્યું, સેનેટર બોબ, ભાઈ પિયુષ પટેલ, શ્રી HR શાહ, ભાઈ શ્રી દીપકભાઈ શાહ,
અમારા રામભાઈ ગઢવી, ચંદ્રેશભાઈ પટેલ, ભાઈ આલ્બર્ટ જસાણી કાયમ ઉત્સાહબાજ હોય, ભાઈ પાર્થિવ પટેલને અને સુનિલ નાયકનો હોલ એમની ટીમ સાથે વોલેન્ટિયરના ડ્રેસમાં એક ટીમ સ્પિરિટને નેતૃત્વ કરતા જોયા. ખૂબ આનંદ થાય છે કે કેટલી સરસ મજાની ટીમ અમેરિકામાં ગુજરાતનો મંત્ર જપી રહી છે. ભાઈઓ બહેનો, આ ગુજરાતનું નામ અમસ્તું નથી થયું. સદીઓ પહેલા આપણું ગુજરાત ઓળખાયું, વર્ષોથી ગુજરાત ઓળખાયું, આઝાદીના કારણે ગુજરાત ઓળખાયું, એના અલગ અલગ તબક્કા રહ્યા છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દ્વારકાધીશને કારણે સદીઓથી આ ભૂમિ લોકોથી પરિચિત હતી. લોકો જાણતા હતા, દ્વારકાના મહિમાને જાણતા હતા. આદિ શંકરે સોમનાથની અંદર પુણ્યભૂમિ બનાવવા માટેનો સંકલ્પ કર્યો, એક નવું છોગું ઉમેરાયું. મહાત્મા ગાંધીનો જન્મ આ ગુજરાતની પવિત્ર ધરતી પર થાય, સરદાર સાહેબનો જન્મ ગુજરાતની પવિત્ર ધરતી પર થાય, એ અમસ્તું નથી બનતું. કોઈ ઈશ્વરીય સંકેત હોય છે. આ ધરતીની અંદર કંઈક એવું હોવું જોઈએ કે જેના કારણે યુગોની અંદર અહેમ ભૂમિકા ભજવનારા લોકો આ રાજ્યની અંદર થયા હોય. જે રામાયણમાં શબરીની ચર્ચા થાય છે, અને જે શબરી નાના બાળકને ઓળખતી હોય, શબરીને નાનામાં નાનું બાળક ઓળખતું હોય. રામાયણના બીજા પાત્રો કદાચ ભૂલાઈ ગયા હોય, પણ શબરી ન ભૂલાય. એ શબરી આજ ગુજરાતની દીકરી હતી. આખી જાંબુવંતની આખી પરંપરા, એનો અમારા ડાંગ સાથે સંબંધ જોડાયેલો છે. રામાયણનો કાળ હોય, મહાભારતનો કાળ હોય, આઝાદીનું આંદોલન હોય, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત હોય, ટેક્સટાઇલની દુનિયામાં નામ મેળવ્યું હોય, કોઈ પણ બાબત લો, આ ગુજરાતે સમય સમય પર માત્ર દેશને નહીં, માનવ જાતને પણ કંઈ ને કંઈ આપ્યું છે. 400 વર્ષ પહેલા એક ચાણક્યએ અનેક રાજા રજવાડાઓને એકત્ર કર્યા, અનેક સલ્તનતો એકત્ર કરી અને અનેક મહારાજાઓને એકત્ર કર્યા. સૌની અંદર એક સૂર પુરાવ્યો અને ભારતના સ્વાભિમાનની લડાઈ માટે લોકોને તૈયાર કર્યા હતા અને વિજયશ્રી પ્રાપ્ત કર્યો હતો. સદીઓ પછી એક સરદાર પટેલ, જેમણે 500 કરતા પણ વધારે રિયાસતોને એક કરી, અને કેટલા પ્રેમથી એક કરી, કેટલા ઓછા સમયમાં એક કરી. સરદાર પટેલને લાંબો સમય શાસન કરવાનો અવસર નહોતો મળ્યો, ખૂબ ઓછો સમય શાસન કરવાનો અવસર મળ્યો હતો, અને તેમ છતાંય આટલું મોટું કામ સરદાર સાહેબ કરીને ગયા. અને એના જ કારણે આજે દેશ એકતા અને અખંડિતતાને કારણે આજે ગૌરવથી ઉભો છે. ભારતના બધા રાજા રજવાડાઓને એકત્ર કરવાનું કામ સરદાર સાહેબે કર્યું. આ દેશને એક અનોખી ભેટ આપતા ગયા. અને આજે આપણે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી એક અખંડ હિન્દુસ્તાનની અનુભૂતિ કરીએ છીએ. અને રાજ શક્તિમાં શું ફરક હોય જેનો નમૂનો દેખાયો હોય તો કાશ્મીરની સમસ્યા જે સરદાર સાહેબ પાસે જો હોત કાશ્મીર, તો કદાચ આ દશા ન થઈ હોત, આ પરિસ્થિતિ પેદા ન થઈ હોત. સરદાર સાહેબ પાસે જેટલા રાજ્યો હતા, હૈદરાબાદના નિજામની ઘણી દાદાગીરી હતી, જુનાગઢના નવાબની દાદાગીરી હતી, પણ સરદાર ઝૂક્યા નહીં. કાશ આ દેશ પાસે એ સમયે કાશ્મીરનો મુદ્દો પણ જો સરદાર સાહેબ પાસે હોત, એક ગુજરાતીના હાથમાં હોત, ભાઈઓ બહેનો, વિશ્વાસ તો કહું છું કે આ દેશ આજે જે સમસ્યાઓ ભોગવી રહ્યો છે એ સમસ્યાઓ ન ભોગવી હોત. અને આ બાબતનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ. કેટલાક લોકોને નહીં ગમતું હોય, जब सरदार साहब का नाम लेते हैं तो पता नहीं क्यों एक राजनीतिक दल जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस की सेवा की, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमने सरदार उनसे छीन लिया है. उनको ऐसा लगता है कि ये सरदार को कहां बीच में ले आए. एक ही परिवार की भक्ति में डूबी हुआ एक दल
हिंदुस्तान के इतिहास को, हमारे महापुरुषों के इतिहास को, हमारे आजादी के जंग को अन्याय कर रहा है। कभी कभी बात आती है कौन शहीद हुए, कितने लोग मरे, कितने लोगों ने अपना जीवन दे दिया, तो आज वो इतिहास भुला दिया जाता है। भाइयों बहनों, मैं जब गुजरात की चर्चा करता हूं तब बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम में हमारे गुजरात के लोगों ने शहादत की थी। अभी मैं गया था पंचमहाल जिले के मानगढ़ के इलाके में, दूर सुदूर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर सटा हुआ एक छोटी सी पर्वती, जहां पर गोविंद गुरु करके एक शहीद हो गए। आदिवासी थे और आदिवासी समाज का वो बेटा व्यसन मुक्ति का अभियान चलाता था, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को इकट्ठा करता था और अंग्रेज सल्तनत गोविंद गुरु से डर गई थी और वहां पर आदिवासियों पर गोली चली थी। आपको जानकर के हैरानी होगी भाइयों बहनों, जलियांवाला बाग में जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा गुजरात के पंचमहाल जिले के मानगढ़ के अंदर गोविंद गुरु के नेतृत्व में चले आंदोलन के अंदर लोग मारे गए थे। लेकिन इतिहास भुला दिया जाता है, हमारे इस वीर पुरुषों को भुलाया जाता है, जिन्होंने त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, उनको भुला जाता है। और तब जाकर के मन करता है कि एक परिवारवाद हमारे देश को खोखला कर रहा है। देश की अनेक समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं तो गंभीरता के रूप से करने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि परिवारवाद भारत को आगे ले जाने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो मुझे लगता है वो परिवारवाद है। कोई आवश्यकता नहीं है, ये भारत माता बहुरत्ना वसुंधरा है। गरीब के घर में भी ऐसे नौजवान पैदा हो रहे हैं कि जो देश के भाग्य को बदलते हैं। आज अमेरिका में जो हमारे 20-25 साल की उम्र के नौजवान जो पहुंचे हैं, आईटी के क्षेत्र में नॉलेज प्राप्त करके गए, वो कोई राज परिवार के बेटे नहीं थे, कोई बहुत बड़े परिवार के बेटे नहीं थे, सामान्य किसान के बेटे थे। आज आईटी को लेकर के अमेरिका में गए और पूरे विश्व को हिंदुस्तान की इस ज्ञान शक्ति का लोहा मानना पड़ा। मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है। क्या ये किसी राज परिवार के बेटे थे? अगर राज परिवार के बेटे न होने के बावजूद भी अगर ये सारे सामान्य व्यक्ति दुनिया बदल सकते हैं तो क्यों न हिंदुस्तान में वो माहौल बनाया जाए। और जब तक धरती से जुड़े हुए सरदार पटेल की तरह सामान्य मानवी से जुड़े हुए लोग भारत का नेतृत्व नहीं करते, भारत के सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व नहीं करते, तब तक समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण भी नहीं बदलेगा। और समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, समस्याओं का समाधान रास्ता भी नहीं मिलेगा। रास्ते वही खोज सकते हैं जिन्होंने पीड़ा को भोगा है। दर्द क्या होता है, ठंड में जिंदगी गुजारनी पड़ी उसको पता होता है ठंड क्या होती है। भूख से जिसने दिन गुजारना होता है उसे पता होता है भूख क्या होती है। और इसलिए जिन्होंने धरती में रह करके, धरती के लोगों से साथ रह करके अपने सार्वजनिक जीवन को बनाया है पूरे देश में, ये जरूरी नहीं सिर्फ गुजरात में, हिंदुस्तान के अंदर हर प्रदेश के अंदर ऐसे महानुभाव है, कोई कमी नहीं है देश में। ये भारत बहुरत्ना वसुंधरा है। हर पीढ़ी में, हर युग में इस भारत को योग्य लोगों की उपलब्धि हुई है। कुछ लोगों ने ऐसा एक माहौल बनाया है कि हिंदुस्तान डूब गया। भाइयों बहनों, मैं बड़ा आशावादी हूं। हम बचपन से कथा सुनते हैं कि आशावादी लोग ऐसा कहते हैं कि एक ग्लास के अंदर अगर आधा ग्लास भरा हुआ है तो आशावादी कहता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, और निराशावादी कहता है आधा ग्लास खाली है। मेरी सोच अलग है। न मैं ये भी कहता हूं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, न मैं ये भी कहता हूं कि आधा ग्लास खाली है। मैं ये कहता हूं कि आधा ग्लास पानी से भरा है, आधा ग्लास हवा से भरा हुआ है। मैं हर चीज में एक आशावादी व्यक्तित्व रखने वाला इंसान हूं और उसी के कारण मुझे भरोसा है कि मेरा गुजरात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये तेजी से आगे बढ़ने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमें
मां भारती की सेवा के लिए इस गुजरात को सज्ज करना है। ये गुजरात रूपी जो पुष्प है ऐसा महके कि जब मेरी भारत माता के चरणों में वो पूरी महक फैल जाए। मेरी भारत माता सुजलाम सुफलाम बने, मंगलकारी बने, ये सपने देख करके हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है, चारों तरफ विकास की चर्चा हो रही है, और साथ साथ ये भी कहा जाता है भाई गुजरात तो पहले से ही विकसित था। अगर विकसित था तो पूरे देश में गुजरात की चर्चा क्यों नहीं होती है? जो लोग गुजरात पहले से ऐसा था ऐसा कहते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए अगर गुजरात पहले क्या था। यही गुजरात था जिसमें इंदुलाल याग्निक को महागुजरात का आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यही गुजरात था जहां नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की नौबत इसी गुजरात में आई थी, और कांग्रेस पार्टी की पूरी सल्तनत को भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन के द्वारा, नवनिर्माण के आंदोलन के द्वारा नष्ट करने का, मृतप्राय करने का काम ये गुजरात की धरती ने किया था। लेकिन ये करने का सामर्थ्य गुजरात में होने के बावजूद भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों का जन्म भी यहां पर हुआ था, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने तबाही का बंजर यहां पर रच दिया था। और इसलिए भाइयों बहनों, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम आज जो गुजरात के विकास की यात्रा की बात करते हैं, कुछ लोग इसे धुंधलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें ललकारना होगा ऐसी ताकतों को। यह देश ने ये एक दशक ऐसा खराब कर दिया है कि इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। दिल्ली में बैठे हुए राज्य सरकारों ने, शासकीय लोगों ने जिस प्रकार से सारा विश्व चर्चा कर रहा था 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, सारा विश्व चर्चा कर रहा था कि 21वीं सदी में चीन आगे जाएगा कि हिंदुस्तान आगे जाएगा। सारे विश्व का ध्यान एशिया के ऊपर था, और सारा भारतवासी भी मानता था कि 21वीं सदी में हम कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 7-8 साल से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है कि जिन्होंने आगे बढ़ने के बजाय ये पूरा हमारा टेक ऑफ होने से पहले ही हम नीचे गिर गए। पूरा देश एक ऐसी परिस्थिति में पैदा, एक पूरा दशक खराब हो गया मैं कहता हूं, और जिसके कारण हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अगर इस प्रकार का नेतृत्व देश को मिलेगा तो देश कहां जाएगा? भाइयों बहनों, आज गुजरात में प्रगति की चर्चा हो रही है। अब देखिए कृषि विकास, दिल्ली में इतनी बड़ी सरकार बैठी है, यह देश कृषि प्रधान माना जाता है, उसके बावजूद भी 3% से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। पिछले 8 साल से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार कृषि विकास के लिए बातें कर रही है। गंगा यमुना जैसी नदियां हो, कृष्णा और गोदावरी हो, उसके बावजूद भी झेलता हो, तो इस नेतृत्व क्या कर रहा है? भाइयों बहनों, अपना गुजरात 10 साल में 7 साल अकाल वर्षा की कमी, ऐसा हमारा राज्य, नर्मदा और तापी के सिवाय कोई नदियां नहीं हमारे पास। उसके बावजूद भी गुजरात राज्य ऐसा है कि जिसने 3% के विकास दर से आगे बढ़ करके 10% विकास दर, और वो भी 1 साल के लिए नहीं, पूरे 10 साल 2002 से 2012 तक पूरे 10 वर्ष 10.7% एग्रीकल्चर ग्रोथ कर करके एक नया इतिहास रचाया है। हिंदुस्तान के किसी राज्य को यह सौभाग्य नहीं मिला है, और वो ऐसे नहीं हुआ है, परिश्रम किया है। किसानों ने अपनी पुरानी पद्धतियों में बदलाव लाया है, वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाया है, और उसी का परिणाम है कि आज गुजरात कृषि क्षेत्र में देश को योगदान दे रहा है। मुझे स्मरण है, एक बार प्रधानमंत्री जी ने प्रार्थना की थी कि हिंदुस्तान में गेहूं की फसल कम हो रही है। गुजरात का किसान कॉटन की ओर चला गया, जीरा की तरफ चला गया, कैश क्रॉप की ओर चला गया। मैंने गुजरात के किसानों को प्रार्थना की थी, भाई देश की अपेक्षा है कि गेहूं मिले। प्रधानमंत्री ने मुझे रिक्वेस्ट की है,
एक साल के लिए कम कमाई होगी तो होगी, लेकिन आइए हम गेहूं पैदावार करें। भाइयों बहनों, मैं गर्व से कहता हूं और मैं मेरे गुजरात के किसानों के सामने अपना सर झुकाता हूं। उन्होंने मेरे एक शब्द को मान लिया, कैश क्रॉप को छोड़ दिया और गेहूं की फसल में भूतकाल में कभी नहीं हुआ इतना उत्पादन करके भारत मां के चरणों में गरीबों के पेट में गेहूं जाए, ये काम मेरे गुजरात के किसानों ने करके दिया। यही तो हमारा देशभक्ति का तौर तरीका है। भारत माता के कोई भी संतान भूखा रहे तो गुजरात का मेरा किसान चैन से सो नहीं सकता है। ये परंपरा गुजरात की रही है और इसलिए मैं उन परिश्रम करने वाले किसानों को आज नमन करना चाहता हूं, उनका मैं सम्मान करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में गुजरात के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है। यह औद्योगिक विकास का कारण क्या है? क्या सिर्फ मूडीपति लोग आकर के पूंजी निवेश करते इसलिए है? किसी धनपति ने आकर के रुपये बो दिए इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है? जी नहीं दोस्तों, रुपये देने वाले तो बहुत जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन गुजरात के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसका श्रेय अगर मुझे देना है तो मेरे गुजरात के मजदूर भाइयों बहनों को देना है। उन मजदूरों को देना है जिन्होंने विकास के लिए अपने आप को खपा देने का सपना देखा है, जो स्वयं का भी डेवलपमेंट करते हैं और राज्य का विकास करते हैं। लाखों की तादाद में हमारे मजदूर लोग हैं जो पसीना बहाते हैं मेरे गुजरात की भलाई के लिए, मेरे देश की सेवा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हम जब कहते हैं कि गुजरात ऐसा है जहां लेबर अनरेस्ट नहीं है, गुजरात ऐसा है जहां पर जीरो मैंडेज लॉस है, तो इसका सर किसको जाएगा? क्या गांधीनगर में बैठे हुए नरेंद्र मोदी को जाएगा? नहीं। क्या सत्ता पर बैठे हुए शासकों को जाएगा? नहीं। क्या उन मूडीपतियों को जाएगा जिन्होंने पूंजी निवेश किया है? नहीं। अगर उसका श्रेय जाता है तो मेरे मजदूर भाइयों बहनों को जाना जाता है जिन्होंने सपना ठान के लिया है कि हम गुजरात को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नंबर 1 पर लाके रखेंगे और हम भारत मां की सेवा करने का उत्तम काम करेंगे, उन मजदूरों को जाता है। अगर मेरे देश का गरीब आदमी का पेट भरने का गौरव अगर मेरे किसान भाइयों को जाता है तो मेरे मजदूर भाइयों को जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पूरा गुजरात आज देश का नेतृत्व कर रहा है उनके लिए जा। भूकंप आया था गुजरात में भाइयों, 2001 में भयंकर भूकंप से हम पीड़ित थे, मौत की चादर ओढ़ करके सोए थे। देश का क्या होगा कह नहीं सकते थे। गुजरात बचेगा या नहीं बचेगा आमतौर पर माना गया था कि अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन इन गुजराती लोगों का ताकत देखिए। इस मौत की चादर को भी उछाल करके फेंक दिया और पूरी ताकत के साथ खड़े हो गए। और जो कच्छ कभी खड़ा नहीं हो सकता है माना जाता था, आज हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से विकास करने वाले जिले के रूप में दुनिया में जाना जाता है। ये ताकत गुजरात की जनता की ताकत है। 6 करोड़ गुजरातियों का सामर्थ्य है कि जो संकटों को पार कर करके खड़े हो जाते हैं। आज गुजरात इसलिए नहीं प्रगति कर रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, गुजरात इसलिए प्रगति कर रहा है कि मेरे 6 करोड़ गुजराती क्या कर रहे हैं। ये गुजराती अस्मिता है, गुजराती जो मानस है उसको प्रकट कराने के इस सरकार ने बल प्रयोग किया है। भाइयों बहनों, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी वैसे भी गुजरात में तो उद्योग थे, गुजरात में ऐसा था, गुजरात में ढिकना था, फलाना था, आपने क्या किया? मैंने क्या किया इसका जवाब मेरे पास हो नहीं सकता है, लेकिन मुझे एक काम करने का संतोष जरूर है। हमारे देश में सरकारें शासक हुआ करती थी। अगर मैंने 10 साल में कोई काम किया है तो ये किया है जो एक मानसिकता थी सरकारी तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में, चुने हुए जनप्रतिनिधियों में, शासन पे बैठे हुए लोगों की, हमारे देश की मानसिकता है। क्या मानसिकता है? शासन में जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को शासक मानते हैं और वो दिन रात जो अपना व्यवहार करते हैं, निर्णय करते हैं, एक शासक की भूमिका से करते हैं। अगर मोदी ने काम करने पर ध्यान दिया है और मुझे मान लगता है कि मुझे उस पर बहुत बड़ी मात्रा में सफलता मिली है, और वो है मैंने गुजरात में सरकार को शासक नहीं, सरकार को सेवक बना दिया है। और यही सबसे बड़ी काम उपलब्धि गुजरात की है। सरकार ये शासक नहीं है, सरकार का काम सेवा करना है। मेरे पूरे 6 लाख कर्मयोगी भाई बहन
जो सरकार के मेरे मुलाजिम है, वो आज पिछले 10 साल से एक ऐसा कर्मयोगी का तपस्या कर रहे हैं। एक सेवक के रूप में उन्होंने अपने पूरे विकास की यात्रा को चलाया है। उन्होंने शासक का जो चोला था उसको फेंक दिया है, सेवक का चोला पहना है। ये छोटी बात नहीं है। और आज प्रगति हो रही है, उसमें मेरे इन 6 लाख कर्मयोगी भाइयों बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये मेरे हाथ पैर जनता की सेवा में इस प्रकार से न लगते तो मेरा गुजरात आज कैसे आगे बढ़ता। ये गुजरात इसलिए आगे बढ़ा है कि नरेंद्र मोदी की जो ये 12 लाख भुजाएं हैं, 6 लाख मस्तिष्क है जो सरकार का हिस्सा है, उन लोगों ने शासक का अपना ताज छोड़ करके सेवक का ताज अपना लिया है और उसके कारण ये संभव हुआ है। ये मेरे गुजरात का योगदान है। भाइयों बहनों, मेरी माताएं बहनें, आज गुजरात के दूध की क्रांति की चर्चा हो रही है, श्वेत क्रांति की चर्चा हो रही है, मिल्क रिवॉल्यूशन की चर्चा हो रही है। अमूल घर घर में पहचाना हुआ नाम है। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भी अगर कोशिश में करता है कि अगर मक्खन अमूल का मिल जाए तो अच्छा होगा, वो अमेरिका में भी अमूल का मक्खन खोजता है क्योंकि उसका टेस्ट उसको भाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि श्वेत क्रांति के पीछे किसका पसीना है? कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप है? कौन सा बिजनेस मॉडल है? कौन सी मैनेजमेंट स्किल है? मित्रों, दुनिया के बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को मैं निमंत्रण देता हूं, आइए मेरे गुजरात की अनपढ़ गरीब माताओं बहनों को देखिए कि उन्होंने इस श्वेत क्रांति में कितना बड़ा योगदान किया है। भाइयों बहनों, 2001-2 में मेरे यहाँ जो मिल्क प्रोडक्शन था और 2011-12 में जो मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें 68% वृद्धि हुई है। 68% इंक्रीज हुआ है। ये पशुपालन का काम कौन करता है? कोई पुरुष करता है? मैं मानता हूं 10% योगदान भी पुरुष का नहीं है। 90% ये पूरा व्यवसाय मेरी माताओं बहनों के हाथ में है, गरीब गांव की किसान माताओं बहनों के हाथ में है, अनपढ़ माताओं बहनों के हाथ में है। लेकिन रिवॉल्यूशन देखिए कि श्वेत क्रांति में पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाला गुजरात 10 साल के भीतर भीतर 68% मिल्क का इंक्रीज कर करके उन्होंने आज स्थिति ये बनाई है कि आप सिंगापुर में जाएं तो चाय गुजरात के दूध से बनती है। आज आप दिल्ली में जाएं, हमारी पूरी सेना, उसको अगर दूध मिलता है तो मेरे गुजरात के किसानों के द्वारा तैयार किया हुआ पशुओं के से मिलता है। अरे दिल्ली के सारे राजनेताओं को भी अगर चाय पीनी है तो गुजरात के दूध का इंतजार करना पड़ता है। ये काम किसने किया? मेरी गुजरात की माताओं बहनों ने किया, मेरी किसान मां बहनों ने किया, अनपढ़ गरीब गांव में रहने वाली मेरी माताओं बहनों ने किया है। तब मेरा गुजरात आगे बढ़ा है। तब मेरा गुजरात आज श्वेत क्रांति के चित्र पर सिरमौर बन करके बैठा हुआ है और आज पूरे विश्व में अमूल के नाम से हम जाने जाते हैं। ये सामर्थ्य है मेरे गुजरात के नारी शक्ति का। मेरा गुजरात का नौजवान दुनिया को कुछ देना चाहता है, एक गर्व के साथ देना चाहता है। आप देखिए गुजरात के नौजवानों ने कितना सामर्थ्य दिखाया है। एक जमाना था जब मेरे राज्य के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें 12-13 हजार हुआ करती थी। मुश्किल से 12-13 हजार नौजवान इंजीनियरिंग स्किल में पढ़ाई के लिए जाते थे। भाइयों बहनों, आज वो सीटें हो गई है 1 लाख। 10 साल में ये फर्क आया है। इंजीनियरिंग स्किल की पढ़ाई के लिए जाने वाले कौन है? ये मेरे नौजवान है, मेरे गुजरात के नौजवान हैं। उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा पा करके इस काम को अपनाया है। किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेजेस में संख्या बढ़ी, क्यों बढ़ी? मेरा नौजवान तैयार हुआ। 11 यूनिवर्सिटी थी गुजरात में। 2001 में जब मैं आया तब 11 यूनिवर्सिटी थी। आज 42 यूनिवर्सिटी के साथ आज हम विश्व के अंदर अपना एक जगह बना रहे हैं। और जब मैं विश्व के अंदर जगह बना रहे कह रहा हूं तो आपको लोगों को आश्चर्य होता होगा, कैसे? भाइयों बहनों, कहना चाहता हूं, सारे विश्व में दुनिया के किसी समृद्ध देश के पास भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। आप जब विश्व के अंदर साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, विश्व के अंदर
इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ रहे हैं, पूरे क्रिमिनल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर उससे सामान्य मानवी को सुरक्षित रखना हो तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फॉरेंसिक साइंस की। अगर हमें डिटेक्शन करना होगा तो फॉरेंसिक साइंस के बिना होने वाला नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में फॉरेंसिक साइंस का रोल बढ़ने वाला है, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। आज गुजरात एक राज्य ऐसा है जिसके साथ पास फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है। इतना ही नहीं, इंटरपोल जैसी संस्थाएं ये गुजरात के फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही है। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये देश जिन्होंने सुरक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाया है, ऐसे देश की यूनिवर्सिटी आज मेरे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही है। हिंदुस्तान में गुजरात पहला राज्य है जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। मेरे नौजवान किस प्रकार से काम कर रहे हैं आप देखिए। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। अब हमारे यहाँ पुलिस में भर्ती होना होगा, सुरक्षा बलों में भर्ती होना होगा, तो ऐसे ही 6 फुट हाइट है इसलिए मौका मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ शरीर तगड़ा है इसलिए मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी ट्रेनिंग होकर के उसको कोर्स करके आना पड़ेगा। छोटा सा छोटा पुलिस वाला भी सुरक्षा के यूनिवर्सिटी में पढ़ करके ग्रेजुएट होकर के आएगा। कैसा ह्यूमन रिसोर्स बदल जाएगा, कैसा मेरा पुलिस का पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा। 5 साल के भीतर भीतर देखिए मेरे भाइयों बहनों, मैं गुजरात के पुलिस तंत्र के पूरे चरित्र को बदल करके आपके सामने रख दूंगा। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट को ये मेरे नौजवान मेरा साथ दे रहे हैं, तब हो रहा है। मैं गुजरात के नौजवानों के सामर्थ्य को आगे बढ़ाना चाहता हूं। पिछले दिनों में गुजरात में 35 साल की छोटी आयु के लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास किया है, रिसर्च के क्षेत्र में विकास किया है, उसको ध्यान में रख करके हमने अभी एक आई क्रिएट नाम की संस्था को जन्म दिया है। मैं चाहता हूं अमेरिका में रहने वाले भी मेरे भारतीय भाई बहन इस आई क्रिएट के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप आइए। श्रीमान नारायण मूर्ति को मैंने रिक्वेस्ट की थी, इन्फोसिस वाले को, मैंने कहा आइए, मेरा आई क्रिएट संस्था है, उसकी चेयरमैनशिप आप स्वीकार कीजिए। और मैं गुजरात की धरती पर सभी हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को, विश्व में फैले हुए भारतीय नौजवानों को जिनकी क्रिएटिविटी है, जो कोई न कोई इनोवेशन कर सकते हैं, जो रिसर्च में ध्यान दे सकते हैं, वो होते सामान्य परिवार के हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उनके पास उतनी फंडिंग नहीं होती है। जिनके पास ऐसे विचार पड़े हैं, उन विचारों को संशोधन के लिए लगाने के लिए राज्य ने खर्च करना चाहिए। और इसलिए हमने आई क्रिएट संस्था बनाई है। जिनके भी मन में, स्कूल का भी बच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसको इनोवेशन आता है, रिसर्च करने का मन आता है, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नया देने का मन करता है, तो आइए इस आई क्रिएट संस्था में आइए, अपनी रिसर्च कीजिए। सरकार आपका पूरा सपोर्ट करेगी और आप जो रिसर्च करेंगे उसको हम दुनिया के बाजार में रखेंगे। रिसर्च को बल देने का बड़ा काम आज गुजरात की धरती पर हो रहा है। आई क्रिएट संस्था को मैं एक वैश्विक स्तर की संस्था बनाना चाहता हूं। श्रीमान नारायण मूर्ति के नेतृत्व में वो काम हो रहा है। मेरे नौजवान मित्रों, देश का भविष्य आप है। देश के भविष्य का बदलने का ताकत बुद्धि बल से सामर्थ्यवान मेरे नौजवान में है। आज विश्व बाहुबल से जीता नहीं जा सकता, आज विश्व बुद्धि बल से जीता जाता है, क्योंकि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। और जब ज्ञान की सदी है तो, और अभी पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया शतरंज खेलने का, चेस। गुजरात चेस के क्षेत्र में काफी अपनी प्रगति कर रहा है। हमने पिछले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, जब गुजरात की गोल्डन जुबिली ईयर मना रहे थे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। 21,000 लोगों ने एक साथ एक ही छत के नीचे चेस खेल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नामांकन किया था। सबसे बड़ा रिकॉर्ड 13,000 का था, हमने 21,000 करके गुजरात ने अपना नाम दर्ज कर दिया। अभी हमने एक नया रिकॉर्ड किया, हमने एक ही छत के नीचे 4,000 महिलाएं चेस के मैदान में आई। 4,000 महिलाओं ने चेस के मैदान में खेल खेला। 100 हैंडीकैप अंधजन आए और ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारे गुजरात की एक बेटी एक साथ 150 लोगों के साथ चेस खेल करके उसने विजय हासिल करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना स्थान बना लिया। भाई बहनों, ये सामर्थ्य मेरी युवा पीढ़ी में है। उस युवा पीढ़ी के सामर्थ्य को हम लगाना चाहते हैं, उनको काम में जोड़ना चाहते हैं, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कल कितना किया उसको संतोष मान करके सोने वाले इंसानों में से नहीं है।
हम आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उस पर करने चलते हैं। अभी हमने एक काम निर्णय किया है, गुटखा प्रतिबंध, कैंसर से नौजवानों की जिंदगी बचाने के लिए। गुटखा खाने के कारण कैंसर अगर घर में आता है तो जवान बेटा गंवाना पड़ता है, बहनों को अपना पति गंवाना पड़ता है। गुजरात सरकार ने प्रतिबंध लगाया और 11 सितंबर जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण किया था, उस विश्व बंधुत्व दिवस है, उस विश्व बंधुत्व दिवस पर हम उसको लागू कर रहे हैं। अभी कुछ दिन बचे हैं, बहुत बड़ा तेज अभियान उसका चल रहा है। और आप भी अगर उस अभियान को समर्थन करना चाहते हैं तो मैं एक टेलीफोन नंबर लिखवाता हूं, आप जरा लिख लीजिए। मैं चाहूंगा कि जो इसके व्यवस्थापक हैं वो भी बाद में सबके मोबाइल फोन पर एक नंबर लिखवा दें, 8009 आप एक मिस कॉल करेंगे तो हम उसको रजिस्ट्रेशन मान लेंगे कि आपने एक गुटखा मुक्ति अभियान का समर्थन किया है। गुजरात के सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं सब इस गुटखा मुक्ति का भी अभियान चला रहे हैं। इस गुटखा मुक्ति अभियान के अंदर मैं अमेरिका में बैठे हुए आपको भी निमंत्रण देता हूं। आप अभी मोबाइल फोन निकालिए, अभी आप एक SMS कीजिए, एक मोबाइल फोन पर रिंग कीजिए हिंदुस्तान में 8009 आप देखिए, इसमें आपको भी जो, इसको निरंतर चालू रखिए। सिर्फ जितने भी लोगों को मिलते हो आप इसको जोड़िए। विश्व भर में फैले हुए मेरे गुजराती बंधु गुजरात के नौजवानों को कैंसर की पीड़ा की तरफ जाते हुए रोकने का काम करने में योगदान दे। भाइयों बहनों, अभी मैंने कार्यक्रम किया। देखिए, राजनीति से ऊपर बहुत कुछ होता है, सिर्फ राजनीति सब कुछ नहीं होती है। इन दिनों गुजरात पंचायती राज व्यवस्था की गोल्डन जुबली मना रहा है। पंचायत राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने प्रारंभ की थी। हम वो सरकार नहीं है कि भाई बलवंत राय तो हमारे बीजेपी के नहीं थे इसलिए हम उनकी बात क्यों माने। वो तो कांग्रेस के जमाने में था तो हमारा क्या लेना देना। हम वो लोग नहीं है। हम कहते हैं विरासत में कभी भी कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। विरासत विरासत होती है, विरासत सबकी होती है। उसको करने वाला कौन था कौन नहीं, इसके आधार पर विरासत का मूल्य नहीं होता है। और इसलिए हमने काम किया है। गोल्डन जुबिली ईयर के अंदर गुजरात के अंदर अब तक तहसील पंचायत में जो बैठे हुए लोग थे, जिला पंचायत में बैठे हुए लोग थे, गांव के सरपंच के नाते जो लोग बैठे थे, 50 साल में जिसने भी सेवा की है उन सबका सार्वजनिक रूप से सम्मान करने का हमारा अभियान चलाया है। अब तक जो जीवित लोग हैं वो संख्या होती है 1 लाख, और इन 1 लाख लोगों में 80,000 से ज्यादा वो लोग हैं जो किसी न किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी से के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र नीति को केंद्र में रख करके काम करने वाले लोग होने के कारण, भले ही उन्होंने कांग्रेस के अंदर काम किया होगा, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर करके विजयी बने होंगे, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा की थी। और इस भाव को लेकर के उन 1 लाख से अधिक तालुका पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच जिन्होंने भी सेवा की है भूतकाल में, उन सबके सम्मान के लिए मेरे मंत्री जा रहे हैं। मेरे सरकार के मंत्रियों के हाथों से 1 लाख जितने इन लोग पदाधिकारियों का सम्मान होना, वो अपने आप में सार्वजनिक जीवन में एक नई परंपरा को पैदा करने वाली बात को हमने अपनाया है। मुझे विश्वास है कि आप भी इसी मनोभाव से, विकास की जब बात हो, गुजरात की बात हो, हम सब एक है। दल कोई भी हो, देश बड़ा होता है। नेता कोई भी हो, देश के लिए जीना होता है। अगर ये भाव लेकर के चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम एक नई शक्ति को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं अभी आपका गीत सुन रहा था, जीतेगा गुजरात को लेकर के आपने बनाया है। आपका ये जो भाव है ना, आपकी सारी आशा आकांक्षा है, उसको पूरा करने में गुजरात कोई कमी नहीं रखेगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर ने हमें जितनी शक्ति दी है वो पूरी शक्ति खर्च करने के लिए हम समर्पित हैं। ईश्वर ने जितनी हमें बुद्धि शक्ति दी है वो बुद्धि शक्ति सिवाय गुजरात के हमें कहीं खर्च करना नहीं है। हमें गुजरात की भलाई के लिए खर्च करना है। 6 करोड़ गुजरातियों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। उस 6 करोड़ गुजरातियों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम जितना भी कर सकते हैं
वो करने का संकल्प करके हम काम कर रहे हैं। मैं फिर एक बार न्यू जर्सी में गुजरात खड़े करने वाले, गुजरात की अनुभूति कराने वाले, गुजरात जीने के लिए लोगों को आकर्षित करने का काम करने वाले आप सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और हमेशा हमेशा आप लिख के रखिए, गुजरात आपका है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये वर्ष गुजरात का चुनाव का वर्ष है। दिसंबर महीने में हमारे यहां चुनाव होने वाले हैं। विदेश से मुझे लोग पूछते रहते हैं कि मोदी जी हमें कुछ करना है, हम क्या करें। मैं जब आज आपके बीच आया हूं तो मैं कहना चाहता हूं, मैं मेरे दल की बात आपको नहीं बताने आया हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहने आया हूं कि आप अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखो, अपने गांव वालों को चिट्ठी लिखो, अपने मित्रों को चिट्ठी लिखो, अपने टीचर को चिट्ठी लिखो। जिन जिन के साथ आपका नाता होगा, 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, जैसे परिवार में शादी हो और याद याद कर करके चिट्ठी लिखते हो, वैसे चिट्ठी लिखो। और ईमेल नहीं, टेलीफोन नहीं, एसएमएस नहीं, कागज लेकर के, भले आप हाथ से न लिखे, कंप्यूटर से लिखे, लेकिन लिखें और लिख करके उनको चिट्ठी भेजो कि इस लोकतंत्र के महोत्सव के अंदर, चुनाव के अंदर आप अपनी सक्रिय भूमिका अदा कीजिए। विश्व में विकास के बिना टिकना मुश्किल है। विकास के रास्ते पर जो आपको योग्य लगता है उसका साथ दो। विकास एक ही मंत्र को प्राथमिकता दो, बाकी सब चीजों को छोड़ो। न जातिवाद होना चाहिए, न सगावाद होना चाहिए, न पैसावाद होना चाहिए, कोई वाद नहीं, सिर्फ एकमात्र विकास का वाद होना चाहिए। ये आप लोगों को चिट्ठी लिखो। और मैं अपेक्षा करता हूं कि अमेरिका में बैठे हुआ हर मेरा भाई 100-150 अपने रिश्तेदारों को, यारों को, मित्रों को, परिचित को चिट्ठी लिखे और लोकतंत्र में सक्रिय। मैं राजनीतिक दल किसका समर्थन करो ना करो ये आपको नहीं कह रहा हूं, ये दल वो दल वो मैं नहीं कह रहा हूं। विकास ये हमारी प्राथमिकता है। और अमेरिका में जो गए हैं उनको पता है कि विकास का मतलब क्या होता है, और इसलिए हमारे राज्य को और अधिक विकास की आवश्यकता है। कोई भी करे, आज मैं हूं, कल कोई और हो सकता है, लेकिन विकास सबको करना पड़े, ये माहौल हमें बनाना चाहिए। और माहौल बनाने के लिए आप इस काम को करें, मेरी अपेक्षा है आप इतना करिए। दूसरा, आज अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, खास करके मेरे गुजरात के भाई। आपका अगर पासपोर्ट इंडिया का है, आप नागरिक हिंदुस्तान के हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन से एक फॉर्म 6 भर करके अमेरिका से भी यहां वोट डाल सकते हैं। वोट डालने की व्यवस्था होती है। आप इलेक्शन कमीशन का संपर्क करें। आपने वहां से लेकर के भी गुजरात के अंदर मतदाता के नाते आप वोट कर सकते हैं, इसका आप काम कर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक नागरिक के नाते हम अपना कर्तव्य निभाने में कभी भी पीछे हट न करें, हम पीछे न रहें, इसकी चिंता हम जरूर करें। फिर एक बार मैं फिर से याद कराना चाहता हूं, गुटखा मुक्ति अभियान को समर्थन करने के लिए आप एक टेलीफोन कीजिए 8009 ये नंबर आप लिख के रखिए, मेरी प्रार्थना है। और एक माहौल बनाइए कि हम नौजवानों को कैंसर से बचाना चाहते हैं, माँ के बेटे को बचाना चाहते हैं, किसी बहन के भाई को बचाना चाहते हैं, किसी नारी को विधवा बनने से बचाना चाहते हैं। एक मानवता का काम है जिसको हमने उठाया हुआ है, और उसमें आप सहयोग करें। फिर एक बार मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं कि आइए, अगले साल, अगली बार जब चलो गुजरात होगा, जरूर होगा, लेकिन 2013 जनवरी लिख के रखिए, 11, 12, 13 जनवरी, 11, 12 and 13 जनवरी 2013 गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मेरा आपको निमंत्रण है। आप आइए, गुजरात का नज़ारा देखिए, गुजरात के विकास के सपनों को देखिए, और गुजरात के विकास के सपनों के साथ जुड़े हुए उन सभी महानुभावों को देखिए। सब मिलकर के किस प्रकार से गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं उसको देखिए। भाई सुनील नायक ने प्रार्थना की कि मुझे कुछ हिंदी में बोलना चाहिए। कठिनाई ये हुई कि बीच में हिंदी शुरू हो गया तो मैं गुजराती पर लौट नहीं आ पाया, हिंदी ही चल पड़ा। तो मैंने बताया माफ करजो मित्रों, मारे गुजराती चलो गुजरातना कार्यक्रमમાં સુનિલભાઈના આગ્રહને કારણે હિન્દીમાં પણ બોલ્યો છું, પણ ફરી એકવાર
આપણે તો ઘરનું ઘર એમ કરીને પછી પાછા ગુજરાતમાં પાછા આવી ગયા. આપણું જ ઘર, આપણું જ કામ, આપણો જ સમાજ, આપણી જ વાત, આપણી જ ભાષા, એનું એક આગવું મહત્વ હોય છે. એ મહત્વને મનાવતા મનાવતા આપણે બધા આ ચલો ગુજરાતને માણીએ. આપને સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આપના પ્રેમ માટે શુભકામનાઓ. આપે મને જે આદર આપ્યો છે એ બદલ હું આપને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત.